हमको सभी से आशीष दे जो सोचने का फर्ज है हो जाने का छोटे गुरुदेव के आदेश के सच प्रेम के निकले के धर्म के सत्य कर्म के ऊंचे झूठे राह के अन्याय के अभिमान की सेवा करने को दास की परवान नहीं हो जान की न हो हमको जिसे वो विश्व में से ईश्वर ओ राम में और कृष्ण में जगदेव में जगदीश में और इंद्रियों पर ताज कर हम वीर हो अति धीर हो कुछ स्वर्ग रहे स्वर्ग से सदा निज धर्म रथ खंभीर हो अति शुद्ध हो आचार से तन मन हमारा सर्वथा आध्यात्म की शक्ति हमें पल भी नहीं करते जुदा इस अमर आत्मा का हर श्वास भर में हम रहे डर मौत भी आ गई सुख दुख हमसे संग रहे So today our team will be taking SEBI listing obligations and disclosure requirements regulation 2015 as amended from time to time. And in this regard, a FAQ has also been released by the institute where they have clarified a lot of matters in these FAQs. So I first invite our speakers to please deal on the subjects wherever required. I will be supporting them, and I request all of you to interact, and wherever it is possible, and wherever you find that something is not, understood by you while they are explaining, try to resolve your queries by asking certain questions. मैंने कुछ लोगों को पहले भी बोला है कि आप लोग थोड़ा इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, तो इंटरेक्ट नहीं करोगे तो ये वन वे लेक्चर के जैसी हो जाएगा. So better you try to put your questions to these speakers. तो जब आप इनसे कुछ पूछोगे तो इनकी भी स्किल्स डेवलप होगी और आपकी भी होगी. So good afternoon everyone. So today I, Kapish Sharma, along with my co-presenters Yash Induria and Naman Rana, will discuss on the topic FAQs on Securities and Exchange Board of India, listing obligations and disclosure requirement. So firstly, let us discuss what is SEBI LODR regulation. So SEBI LODR regulations means listing obligation and disclosure requirement that were issued by SEBI in the year 2015. The main aim of issuing such regulation was to protect the interest of stakeholders in the listed entities and to ensure that all the disclosures of material events is made on a timely manner and in the format that is required by these regulations. Now let us see what are the key provisions of SEBI LODR. So first one is the disclosure of material events, that all the material events regarding any listed entity are disclosed on a timely manner and in the format as prescribed by these regulations. Secondly, SEBI LODR talks about corporate governance requirement. That means it tells the composition of various committees such as audit committee, stakeholder and remuneration committee, nomination committee, and other committees. It also talks about the independent director requirement
his appointment and the filling of vacancy in the office of independent director. Then thirdly, it talks about financial reporting and disclosure requirement. So SEBI LODR applies on listed entity. Because of this regulation, listed entity have to comply with the regulations such as they have to go through limited review and annual audit and submit these audit report and financial statements on the predetermined timelines. Fourthly, it also deals with related party transaction. अभी recent news आपने कोई सुनी है जिसमें कोई material event या financial reporting से बात किसी particular कंपनी ने उस पे डाली है इंडसलैंड एलआईसी पे और उसका शेयर जो है सीधा 27% नीचे आ गया। इंडसइंड बैंक इंडसइंड बैंक नहीं सुना तो बस अपनी पढ़ाई में लगे हुए हो। तो वो ये जो कार्यक्रम हो रहा है ना मटेरियल डिस्क्लोजर, जो ही कंपनी को ये पता चला कि मेरा प्रॉफिट जो है वो इस पर्टिकुलर चीज से 1600 करोड़ रुपए से हिट हो रहा है, तो देन without waiting for the financial reporting, they had to report it to the SEBI, to the exchange। कि साहब हमारी अकाउंटिंग के अंदर गलत रिपोर्टिंग चली आ रही है एंड नाउ वी रिपोर्ट कि हम जो डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस हैं उनको प्रॉपर तरीके से अकाउंट फॉर नहीं कर रहे हैं और उसका जो लाइकली इम्पैक्ट है दैट इज 1600 करोड़ लॉस टू दी कंपनी। और जो ही इन्होंने एक्सचेंज पे ये रिपोर्ट किया उनका जो शेयर है वो 27% से नीचे आ गया। तो ये डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इवेंट जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हमने ऑडिटर भी सेपरेट अपॉइंट किया हुआ है, लेकिन उसका आउटकम आने से पहले ही हम आपको ये बता रहे हैं कि साहब ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ कंपनी के अंदर चल रही है। तो कितना कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैकेनिज्म चाहिए होता है। प्रैक्टिकली तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के हिसाब से इंडसइंड बैंक का रिपोर्टिंग जो है वो शुरू से ही ठीक होना चाहिए था, है ना। तो प्रैक्टिकली तो देखा जाए तो द रेस्पॉन्सिबिलिटी वाज दैट कि ये इस तरीके की गलती जो है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हो ही नहीं, लेकिन अब हो गई है, पता चल गई है, तो फिर देन इट हैज टू बी इमीडिएटली reported, need not to be waited for, you know, declaration of the result कि यार ये तो रिजल्ट डिक्लेरेशन का पार्ट है तो अपन बाद में डिस्क्लोज कर देंगे। नो कंटिन्यू। Then it tells about related party transaction. So firstly, CBL ODR defines who are the related party of an entity, and then it talks about how to disclose the related party transaction, which transaction are to be disclosed and which are exempt. Fifthly, it deals about the obligation of directors and key managerial person. So CBL ODR fixes responsibility for compliance and disclosure on board of directors and key managerial person to follow these regulations. Now we will discuss that on which entities CBL ODR regulation apply. So these regulation apply on listed entities which have listed their designated security on recognized stock exchange. So designated securities include specified security that are listed on main board, SME exchange, and innovator growth platform. Non-convertible securities, Indian depository receipt, securitized debt instrument, security receipt, units of mutual fund, and any other security that may be prescribed. So specified securities which are listed on main board refer to equity shares and convertible stock that is listed on main board, that is recognized stock exchange, or SME exchange, which is stock exchange for small and medium enterprises, and innovative growth platform, that is stock exchange meant for startups. तो कोई भी सिक्योरिटी, सो इट डजंट मीन कि केवल शेयर्स एंड सिक्योरिटीज ही लिस्टेड होने चाहिए, केवल शेयर्स ही लिस्टेड होने चाहिए। इन्होंने जैसे बताया ना नीचे वाली स्लाइड पे, आप नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज भी हैं, आईडीआरस हैं, सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इवन इफ दे आर लिस्टेड देन these regulations, LODR regulations will apply. So non-convertible securities का मतलब होगा कि नॉन कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट that are for fixed maturity period and are not convertible into equity shares.
Same goes with the non-convertible redeemable preference share that are redeemed after a life of certain life as per the agreement, but are not convertible into equity shares. It also includes perpetual debt instrument and preference share. And the next definition that comes is of net worth. So net worth for the purpose of SEBI LODR is paid up share capital plus all reserves that are created of profit, created out of the profit, plus security premium reserve, but it does not include any accumulated loss or deferred expenditure that is not written off. Now, how are listed entities identified on the basis of provision under SEBI LODR? So firstly, every recognized stock exchange prepares a list of listed entities on the basis of their average market capitalization from 1st of July to 31st of December. And after that period, when the list is released, all the entities are required to comply with this provision from the 3 months beginning from 1st of January to 31st of March, or if their financial year is beginning after that, then whichever is later. And after complying with these rules, they have to follow a system and disclose the system that have they created for the disclosure and for following other rules and regulation of this act or this regulation, and disclose it in their annual report. All these provisions that apply on the basis of market capitalization are applicable till there is no change in the ranking of the list that is prepared by recognized stock exchange for a period of 3 consecutive years. But the rules and regulations that are applicable due to the debt instrument, the value of debt, are applicable until such debt is redeemed. ये इन्होंने एक्चुअली बांटा है कि किस किस को किस तरीके की रेगुलेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं एंड व्हाट आर द टाइमलाइन फॉर द कंप्लायंस Compliance. ठीक है जैसे इन्होंने लिखा ना disclosure requirement, disclose the business responsibility and sustainability report and BSR, BRSR core assurance In the annual report. in the annual report for the financial year when systems and processes were Implement. implemented. मतलब तो ये सबके ऊपर applicable नहीं है ये सारे. BRSR से related जो है वो Top 250 company या top top 250 companies के ऊपर ही ये है. तो ये कहीं आपने criteria भी mention किया है इस पे क्या applicable है? हाँ आगे cover. आगे. Who all are considered to be related party under SEBI LODR. So जैसे भी अपन ने पहले देखा था कि रिलेटेड पार्टी को भी डिफाइन करता है और जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है उसके बारे में भी बताया है. तो रिलेटेड पार्टी हो गया एक तो प्रमोटर और प्रमोटर का ग्रुप, मतलब जो भी उसकी होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी है, एसोसिएट है, जॉइंट वेंचर्स है, उसमें जितने भी प्रमोटर है वो सब इस लिस्टेड एंटिटी की रिलेटेड पार्टी हुए. और सिग्निफिकेंट शेयर होल्डिंग की अगर कोई भी पर्सन है जो 10% या उससे ज्यादा या तो खुद या विद रिलेटिव होल्ड कर रहा है इस एंटिटी के अंदर, तो वो इसका रिलेटेड पार्टी हो गया. और उसके अलावा कंपनीज एक्ट की सेक्शन 2 सबसेक्शन 76 में जो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन है, या अगर उस पर एएस लगते हैं तो एज पर एएस जो रिलेटेड पार्टी डेफिनेशन है, या इंडेस तो इंडेस में जिन्हें रिलेटेड पार्टी बताया है वो SEBI LODR में रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे. तो जैसे कंपनीज एक्ट का सेक्शन 2 सबसेक्शन 76 में डिफाइंड है कि डायरेक्टर और उसके रिलेटिव, की मैनेजरियल पर्सन और उसके रिलेटिव, फर्म जहाँ पे डायरेक्टर या मैनेजर पार्टनर है, प्राइवेट कंपनी जिसके अंदर वो डायरेक्टर है, या पब्लिक कंपनी में जहाँ पे वो डायरेक्टर है प्लस वो अपने रिलेटिव्स के साथ 2% इक्विटी शेयर्स भी होल्ड कर रहे हैं, या बॉडी कॉर्पोरेट विच इज अकस्टम टू एक्ट ऑन द डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस एज पर आवर डायरेक्टर्स, या उसकी जो होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी, एसोसिएट या जो ग्रुप है वो पूरा उसको रिलेटेड पार्टी माना जाएगा. और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कौन कौन से होंगे? तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन वो हुआ जहाँ पे एक तरफ तो है लिस्टेड एंटिटी या उसकी सब्सिडरी ट्रांजैक्शन कर रही है जो अभी अपन ने पहले रिलेटेड पार्टी देखी उनके साथ, या फिर वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं किसी ऐसे पर्सन के साथ जो ट्रांजैक्शन का पर्पस है अपने रिलेटेड पार्टी को बेनिफिट पहुंचाना. तो ये दो ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में कवर होंगे. पर नीचे ये लिस्ट है जो है तो रिलेटेड पार्टी के साथ, पर ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं माने जाएंगे. जैसे कि हो गया कि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बेस पे शेयर्स अलॉट करे पर वो फॉलो करें सेबी की इशुएंस ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, तो उसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे. डिविडेंड का पेमेंट करा, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स करा, या राइट इशू करा, बायबैक हुआ, पर ये इक्वली यूनिफॉर्मली सारे शेयर होल्डर्स को ऑफर हुआ, तो ये भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं होगा. बैंक या एनबीएफसी ने फिक्स डिपॉजिट एक्सेप्ट करे कस्टमर से या शेयर होल्डर से, अगर उसमें टर्म कस्टमर्स के लिए और शेयर होल्डर्स के लिए सेम है, कोई दोनों में
अलग नहीं रखे तो वो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नहीं होगा। प्लस अगर एम्प्लॉयज और डायरेक्टर कुछ रिटेल परचेज करते हैं लिस्टेड एंटिटी से ऑन द यूनिफॉर्म टर्म्स तो ये भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नहीं होगा। अब आगे इसके अंदर कंप्लायंस ऑफिसर के बारे में भी सेबी एलओडीआर में बताया कि हर लिस्टेड एंटिटी को एक कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा और उस कंप्लायंस ऑफिसर की जो डेजिग्नेशन है वो होनी चाहिए कि वो एक कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए, प्लस वो कंपनी की होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में रहना चाहिए और उसका जो डेजिग्नेशन होगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से 1 लेवल बिलो नहीं होना चाहिए, मतलब इमीडिएट वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करना चाहिए और उसको डेजिग्नेट करना चाहिए की मैनेजरियल पर्सन की तरह। और उसके ऑफिस में अगर कोई भी वैकेंसी होती है, मतलब वो ऑफिस छोड़ देता है, रिजाइन कर देता है, तो वैकेंसी 3 महीने के अंदर अंदर फुलफिल हो जानी चाहिए, मतलब दूसरा कंप्लायंस ऑफिसर हमें अपॉइंट करना पड़ेगा। तो कंप्लायंस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी? कंप्लायंस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि जितने भी रेगुलेटरी प्रोविजन है आइदर ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर रेगुलेशन ऑफ सेबी, तो उसको उन्हें कंफर्म करना है कि वो रेगुलेशंस या रिक्वायरमेंट्स फॉलो हो रही है। जो भी रिपोर्टिंग है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को, डिपॉजिटरी को, कंप्लायंस रिलेटेड वो टाइमली कंपनी कर रही है। और जो भी इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट रिपोर्ट्स एंटिटी इशू कर रही है आउटसाइडर्स को या स्टॉक एक्सचेंज को, तो वो करेक्ट है और जैसा फॉर्मेट सेबी ने प्रिस्क्राइब कर रखा है सेम उसी फॉर्मेट में रिपोर्टिंग हो रही है। एंड जितने भी इन्वेस्टर कंप्लेंट्स आती है उनका ग्रीवेंस रिड्रेसल भी कंप्लायंस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कंप्लायंस ऑफिसर की बात आता है कि शेयर ट्रांसफर एजेंट किन किन को अपॉइंट करना है। तो जितने भी लिस्टेड एंटिटीज है इन सबको या तो शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट करना है या फिर ये फैसिलिटी इन हाउस मैनेज करनी है। पर अगर जो सिक्योरिटी होल्डर्स है वो 1 लाख या उससे ज्यादा है तो एंटिटी अगर वो इन हाउस मैनेज कर रही है तो उसे एक कैटेगरी 2 शेयर ट्रांसफर एजेंट का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा सेबी से, या फिर उसे कोई सेबी अप्रूव जो शेयर ट्रांसफर एजेंट है वो अपॉइंट करना पड़ेगा। मतलब 1 लाख से ज्यादा होने के बाद वो इन हाउस मैनेज करी तो उसे नया सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कैटेगरी 2 वाला। इन केस अगर वो शेयर ट्रांसफर एजेंट जो उसका पहले था तो उसे चेंज करना चाहती है तो उस केस के लिए ट्राई पार्टाइट एग्रीमेंट एंटर करना होगा। इसमें एक पार्टी तो हुई जो एग्जिस्टिंग अपना शेयर ट्रांसफर एजेंट है, दूसरी पार्टी कंपनी खुद, और तीसरी जो नया शेयर ट्रांसफर एजेंट होने वाला है। उन तीनों का एक एग्रीमेंट होगा एज पर द गाइडलाइंस ऑफ सेबी, और विद इन 7 डेज ऑफ द एग्रीमेंट ये इंटीमेशन जानी चाहिए रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो इस एग्रीमेंट को अप्रूव करने चाहिए जो भी उनकी सब्सिक्वेंट मीटिंग होगी, बोर्ड मीटिंग जो होगी उसके अंदर। और इन अगर केस में अगर वो इन हाउस मैनेज कर रही थी तो ट्राई पार्टी की जगह फिर कंपनी और जो भी नया शेयर ट्रांसफर एजेंट होने वाला है उन दोनों का एग्रीमेंट होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट एफएक्यू इज कि क्या क्या कंडीशन रहेगी जो लिस्टेड एंटिटी को फॉलो करनी होगी अगर वो अरेंजमेंट में एंटर होती है। तो अरेंजमेंट का मतलब होगा कि कोई भी अमेलगमेशन, मर्जर, रिकंस्ट्रक्शन, कैपिटल को अगर वो रिड्यूस कर रही है या इसी तरह का और भी कोई जो अरेंजमेंट हुआ तो उसके लिए सबसे पहले तो वो अरेंजमेंट अप्रूव होना चाहिए कोर्ट या ट्रिब्यूनल से। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी उसे अप्रूव करेंगे। पर ये जो रेगुलेशन है ये उस म्यूचुअल फंड पे नहीं लगेगी जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है रिलेटेड टू दिस अरेंजमेंट्स। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड रिडेम्पशन अमाउंट, कि कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर्स या कोई और सिक्योरिटी होल्डर्स को पेमेंट करती है डिविडेंड का, इंटरेस्ट का, तो वो जो पेमेंट होगा वो केवल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम मतलब बैंकिंग रूट के थ्रू ही होगा। और इन्वेस्टर्स की जो डिटेल है कंपनी को मंगवा सकती है डिपॉजिटरीज से जहाँ उनकी हर इन्वेस्टर्स की पूरी डिटेल मेंटेन्ड है। इन केस अगर इन्वेस्टर की बैंक डिटेल अवेलेबल नहीं है तो कंपनी उनको पेबल एट वारंट या चेक इशू करके पोस्ट कर सकती है। पर ये तो उसी केस में हो सकता है जब इन्वेस्टर की बैंक डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। वैसे आज की डेट में जनरली जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि वो क्योंकि डिमेटेरियलाइजेशन हो चुका है तो भी सबकी है और डिपॉजिट मेकिंग इन्वेस्टमेंट ओनली थ्रू बैंकिंग चैनल, तो ये पॉसिबल जहां तक मेरा ख्याल है नहीं है कि नहीं। किसी बैंकर की, किसी इन्वेस्टर की डिटेल्स नहीं है। अब ये पुराना इन्वेस्टर हो और उसने डिमेटेरियलाइजेशन ही नहीं कराया, तो देन दैट पॉलिसी पॉसिबिलिटी इज देयर। इससे पूछ। हाँ, कितना पहला जब वो फेल हो जाते हैं ऑनलाइन पेमेंट करने। मतलब या तो डिटेल अवेलेबल है नहीं बैंकिंग डिटेल, और अगर बैंकिंग डिटेल अवेलेबल है पर जो आईएफएससी कोड है अकाउंट में कुछ चेंज हो गया जिस वजह से पेमेंट नहीं हो पा रहा तो फिर पेबलेट पार अपन वारंट या चेक इशू कर सकते हैं। तो ऐसा कोई कहते में जैसे इंश्योर हो कि वो जानबूझ के कैश पेमेंट नहीं कर रहे हैं,
उसके लिए तो शायद रिकॉर्ड रखना होगा, इसमें ऐसे स्पेसिफाइड नहीं है इस गाइडलाइन में एग्जाम्पल पे कैश पेमेंट बना, मतलब वो अगर उनसे मिस्टेक हो जाती है तो ये मैकेनिज्म है एज अ सेकंड लास्ट रिजॉर्ट, बट कई वो उसको प्राइमरीली प्रायोरिटाइज करेंगे, हमको कैश सेव भी करेंगे। नहीं ऐसा नहीं कर पाएंगे कि आप अपना कोई प्रायोरिटी पे के साथ हम तो आपको इसके थ्रू पेमेंट करेंगे, हम ऑनलाइन करेंगे नहीं। उनको प्राइमरी तो उनको ऑनलाइन इसलिए भी फॉलो करना पड़ेगा। दिस इज ओनली एन अल्टरनेटिव, लिखा ना, इफ द बैंक आर नॉट अवेलेबल, if bank details are unavailable, or if electronic payment fails, then payable as power warrants, checks must be issued with the bank account details or investor address field. ये लास्ट रिसोर्ट हो गया, मतलब कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो इसमें अगला आता है जैसे कंप्लायंस ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल है इन्वेस्टर की ग्रीवेंस को रिट्रेस करने के लिए। तो इन्वेस्टर के पास एक प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल होना चाहिए जहां वो अपनी ग्रीवेंसेस इशू कर सके या अपनी ग्रीवेंसेस वहां उनको बता सके कंपनी को। तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म, या अगर इसके अलावा और भी प्लेटफॉर्म है जो सेबी अप्रूव्ड है। तो कंपनी इनमें से प्लेटफॉर्म चूज करेगी जहाँ पे इन्वेस्टर अपनी जो भी ग्रीवेंसेज है कंप्लेंट्स है वो रखेंगे। और जो कंपनी है उनको क्वार्टरली जितने भी उनके पास कंप्लेंट्स आई उनका रिड्रेसल हुआ पूरा एक स्टेटमेंट फॉर्म में स्टॉक एक्सचेंज को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और जब भी बोर्ड मीटिंग होगी क्वार्टरली बेस पे, तो सेम जो उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में सबमिट कराया है वो सबसे पहले बोर्ड मीटिंग के अंदर प्रेजेंट होगा कि इन्वेस्टर कंप्लेंट्स का स्टेटस क्या है। तो जैसे अब जो नॉन कन्वर्टिबल डेट देखा था अपन ने, जो स्पेसिफाइड सिक्योरिटी की डेफिनेशन में कवर था कि अगर लिस्टेड एंटिटी ने नॉन कन्वर्टिबल डेट इशू कर रखा है तो उसके लिए स्पेसिफिक रेगुलेशन इशू कर रखे हैं सेबी ने, जो अपन आगे देखेंगे प्रेजेंटेशन के अंदर। तो अगर डेट इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू अप टू 500 करोड़ से ज्यादा है तो विद इन 6 मंथ की जैसे डेट की वैल्यू मोर देन 500 करोड़ चली गई तो 500 करोड़ टच होते ही नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर जितनी भी रेगुलेशन है वो कंपनी को फॉलो करनी पड़ेगी। पर 31 मार्च 25 अप टू 31 मार्च 2025 तक कंपनी के पास एक चॉइस है कंप्लाई और एक्सप्लेन बेसिस की, कि वो या तो इन रेगुलेशन से कंप्लाई कर सकती है और अगर वो कंप्लाई नहीं कर रही तो उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो कंप्लाई क्यों नहीं कर रही है। पर 31 मार्च ऑफ 2025 के बाद ये रेगुलेशंस मैंडेटरी हो जाएंगे तो कंपनी को फॉलो करने ही पड़ेंगे। तब तक के लिए एक मैकेनिज्म डेवलप करने के लिए कंपनी के पास टाइमलाइन है। अब जैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और रीट, इन पे ये वाली सेबी की एलओडीआर रेगुलेशंस एप्लीकेबल नहीं है। इनके लिए सेबी ने अलग से रेगुलेशन निकाल रखी 2014 के अंदर, तो उन पे वो वाली रेगुलेशंस एप्लीकेबल होगी। जैसे अपन ने देखा था कि सेबी का एक मेन पार्ट जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोविजन के ऊपर भी है। पर ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोविजन के एग्जाम्पशन भी दिए गए हैं इस गाइडलाइन के अंदर कि किन किन एंटिटी पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। जैसे जो एंटिटीज का पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है, 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है, या उनकी नेटवर्थ 25 करोड़ को एक्सीड नहीं करती, जो भी प्रीवियस ईयर का लास्ट डेट है, मतलब 31 मार्च ऑफ द ईयर पे अगर उनकी ये गाइडलाइन मीट नहीं होती, या वो स्मॉल एंड मीडियम एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोविजन में उनको काफी एग्जेम्पशन दी हुई है। जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनीज एक्ट के अंदर भी डिफाइंड है और सेबी की जो रेगुलेशंस है इसके अंदर भी डिफाइंड है। पर दोनों के अंदर क्या कोई डिफरेंस है क्या? तो सेबी के अंदर ये जो प्रोविजन है ये थोड़े स्ट्रिक्ट है। तो उसके अंदर एडिशनल जो क्वालिफिकेशन दे रखी है वो ये है कि जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप किसी का भी मेंबर नहीं हो सकता। कंपनीज एक्ट के अंदर उसके अंदर केवल होल्डिंग सब्सिडरी तक ही है ये डेफिनेशन, पर इसके अंदर पूरे प्रमोटर ग्रुप को कवर करा है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रमोटर ग्रुप में किसी भी कंपनी का मेंबर नहीं हो सकता। वो जो है हमारा प्रिंसिपल सप्लायर, सर्विस प्रोवाइडर, कस्टमर, लेसर या लेसी भी नहीं हो सकता। मतलब उसका एंटिटी के अंदर किसी भी तरह से कुछ उसका मटेरियल पेक्युलर रिलेशनशिप नहीं हो सकता। उसकी जो एज है वो 21 ईयर से कम नहीं हो सकती। और क्रॉस डायरेक्टरशिप के ऊपर भी यहाँ पे मना कर रखा है कि वो जो डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमारा वो किसी ऐसी कंपनी का नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता जहाँ ऑलरेडी हमारा कोई डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। तो एक बार हम डिटेल में देखते सीबी में जो डेफिनेशन दे रखी है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की वो क्या क्या उसमें कवर्ड है। सबसे पहले तो जो जिसको भी हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं वो पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी होना चाहिए, मतलब ये तो मॉरल वैल्यू रिलेटेड हो गया। दूसरा हो गया कि वो हमारे किसी भी प्रमोटर ग्रुप का मेंबर नहीं होना चाहिए।
उसके कोई भी हमारी एंटिटी के साथ पेक्यूनरी यानी मॉनेटरी रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए कि जिससे वो हमारे ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो। फिर रेस्ट्रिक्शन उसकी शेयर होल्डिंग और इंडेटनेस के ऊपर भी है कि या तो जिस पर्सन को हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने वाले हैं वो या उसके रिलेटिव कोई भी हमारा सिक्योरिटी होल्डर नहीं होना चाहिए। हमारे लिस्टेड एंटिटी या उसके ग्रुप में होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट से इंडेटेड नहीं होना चाहिए। उसने कोई गारंटी नहीं दी होनी चाहिए किसी के डेट के लिए। और जो भी पेक्यूनरी ट्रांजेक्शन है वो उसके 2% ऑफ टर्नओवर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कि उसका कुछ हमारे से रिलेशन हो रिलेटेड टू परचेज सेल, पर जो भी उसका टर्नओवर है उससे 2% से एक्सीड नहीं करना चाहिए वो अमाउंट। जो भी हमारी ऑडिट फर्म है या कंसल्टिंग फर्म है उससे उसका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, मतलब वो उनमें की मैनेजरियल पर्सन के रोल पे नहीं होना चाहिए। एक कंडीशन ये है कि जैसे जो भी हमारे मटेरियल सप्लायर सर्विस प्रोवाइडर कस्टमर है वो हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। जैसा पहले, और एक ये है कि एज पे भी लिमिट है कि 21 ईयर्स या उससे कम का कोई सी भी पर्सन को हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते। और क्रॉस डायरेक्टर भी नहीं हो सकता, मतलब किसी और एंटिटी का नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो जहाँ पे हमारा ऑलरेडी कोई डायरेक्टर एज ए डायरेक्टर काम कर रहा हो तो वो भी हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। मतलब आप तो किसी और जगह इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन गए और उसके किसी पर्सन को आपने आपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये भी नहीं होता। अब इससे आता है कि सेबी एलओडीआर के अंदर चार कमेटी के बारे में बोला है कि ये चार कमिटीज लिस्टेड एंटिटीज को फॉर्म करनी है। जैसे कि ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी, स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी और रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। तो हम देखते हैं कि इसका कंपोजिशन क्या रहना चाहिए, इसके जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन रह सकते हैं और क्या लिमिट है उनके ऊपर। सबसे पहले जो ऑडिट कमेटी है उसके अंदर कम से कम हमारे 3 डायरेक्टर ऐसे मेंबर काम करने चाहिए। और उसमें से भी एटलीस्ट जो 2/3 है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। मतलब इसमें ये प्रोविजन इसलिए रखा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्योंकि ऑडिट कमेटी का काम सेम सिमिलर टू ऑडिटर हो गया। तो जैसे ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए वैसे ऑडिट कमेटी के जो मेंबर है वो भी इंडिपेंडेंस रखनी चाहिए कि जब वो किसी भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को अप्रूव कर रहे हैं या ऑडिटर से जब डील कर रहे हैं तो वो अगर इंडिपेंडेंट रहेंगे तो कंपनी अच्छे से काम कर सकेगी। वो जितने भी ऑडिट कमेटी के मेंबर है वो फाइनेंशियली लिटरेट होनी चाहिए और उनमें से कम एक अकाउंटिंग और फाइनेंस का एक्सपर्ट होना चाहिए। जो भी ऑडिट कमेटी का चेयरपर्सन होगा वो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। और जो कंपनी ने कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट कर रखा है वो ऑडिट कमेटी का भी सेक्रेटरी होगा। जितनी भी मीटिंग होगी ऑडिट कमेटी में तो ऑडिट कमेटी का जो भी चेयरपर्सन है उसके पास डिस्क्रिप्शन रहेगा कि वो हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट उस कंपनी का या उस कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर को इनवाइट कर सकता है। तो जब भी ऑडिट कमेटी पहले रिजल्ट्स अप्रूव करती है और फिर वो बोर्ड के पास जाती है, तो जब भी रिजल्ट्स अप्रूव होने होते हैं तो देन दे इनवाइट द ऑडिटर्स आल्सो, क्योंकि अल्टीमेटली ऑडिटर को उसको रिपोर्ट देनी होती है। देन दे आस्क यू लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडिटर्स, है ना। और अभी आपने एक बार कभी एनएफआरए की वेबसाइट विजिट की होगी, तो एनएफआरए इज आल्सो रिलीजिंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस to be asked by the independent directors from the auditors. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को ऑडिटर से क्या क्या पूछना है। तो अभी एक जैसे इंडेस 109 के ऊपर रिसेंटली एनएफआर हैज रिलीज्ड वन स्मॉल डॉक्यूमेंट, है क्या आप लोगों को इसमें? अच्छा, इसमें नहीं है ना। तो आप ये देखिए कि जो धीरे धीरे जो गवर्नेंस है वो कितनी मैकेनाइज्ड हो रही है। मतलब ऑडिट कमिटी में भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को ये नहीं है कि अपनी मर्जी से कुछ पूछ लिया, दे शुड कम आउट विथ होल प्रिपेयर्डनेस फॉर अटेंडिंग द ऑडिट कमिटी मीटिंग्स। और उसके लिए भी गाइडेंस जो है वो धीरे धीरे जो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है या इंस्टीट्यूट है ये सब इश्यू कर रहे हैं, एंड दोस थिंग्स शुड बी deliberated by the independent directors in the audit committee meetings. Yes. अगली जो कमेटी है वो है नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी। तो इसके अंदर भी एटलीस्ट 3 डायरेक्टर होने चाहिए कंपनी के। जितने भी डायरेक्टर वो मेजरली नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए। और सेम कंडीशन जो अपन ने देखी थी ऑडिट कमेटी की, एटलीस्ट 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इसमें भी होने चाहिए। इसका जो चेयरपर्सन है वो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। अगली कमेटी होती है स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी। इसका जो काम है वो ये है कि
शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट है, डिबेंचर होल्डर्स का जो इंटरेस्ट है या अदर्स कोई सिक्योरिटी होल्डर्स है, उनके इंटरेस्ट को ही ध्यान रखती है। इसका जो कंपोजिशन है वो ये ऐसा रहता है कि कम से कम कंपनी के 3 डायरेक्टर्स इसके मेंबर होने चाहिए और उनमें से कोई एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। इनकी मीटिंग के लिए भी सीबीएलओडीआर में ऐसा मेंशन है कि एटलीस्ट वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी की मीटिंग होनी चाहिए रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी होल्डर्स। अगली जो कमेटी है वो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। इसके अंदर कम से कम 3 मेंबर होने चाहिए और जो मेजोरिटी है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होनी चाहिए। मतलब इसके अंदर अदर देन डायरेक्टर्स जो एम्प्लॉइज है वो भी इसके अंदर मेंबर हो सकते हैं, पर जो मेजोरिटी है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होनी चाहिए और उसमें से भी एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहना चाहिए। Now, what are the various categories related to disclosure of material events और information? मतलब कौन कौन सी ऐसी कैटेगरीज है जिनका डिस्क्लोजर करना है मटेरियल इवेंट्स की तरह। तो सबसे पहला तो वो मैटर जो ओपिनियन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मटेरियल है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसे बोर्ड मीटिंग में डिस्कस करा है और उनको लगता है कि ये मटेरियल ट्रांजेक्शन या इवेंट है, इसे डिस्क्लोज करना है। या फिर ऐसे ट्रांजेक्शन जो शेड्यूल 3 के अंदर कवर्ड है, जो जो शेड्यूल 3 के पार्ट ए और पार्ट बी में जो कवर्ड है गाइडलाइंस के, उन्हें भी मटेरियल ट्रांजेक्शन या इवेंट मानते हुए डिस्क्लोज करना है। अब मटेरियलिटी का क्राइटेरिया क्या रहेगा कि किन ट्रांजेक्शन या इवेंट्स को अपन मटेरियल मानेंगे। तो सबसे पहला इसके अंदर जो गाइडेंस है वो इससे दी हुई है कि कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जिसको हम ओमिट कर देंगे या जिसका डिस्क्लोजर नहीं देंगे, तो जो पब्लिक में ऑलरेडी कोई इन्फॉर्मेशन है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी। मतलब कि पब्लिक में कोई इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है कंपनी के बारे में और अगर अब हम उसका डिस्क्लोजर नहीं देंगे तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी कि सच नहीं रहेगी वो। या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जिसका डिस्क्लोजर आज नहीं दिया तो बाद में देंगे तो मार्केट में बहुत सिग्निफिकेंट रिएक्शन रहेगा, तो ऐसे किसी भी ट्रांजेक्शन को हमें आज ही डिस्क्लोज करना है। और ऐसा कोई इवेंट या ट्रांजेक्शन जो हमारे थ्रेशोल्ड जैसे कि 2% ऑफ टर्नओवर या 2% ऑफ नेटवर्थ या 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स को एक्सीड करता है, तो उसे भी हम मटेरियल मानेंगे और उसका डिस्क्लोजर होगा। या वापस कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसे मटेरियल मानते हैं या उन्हें इंपॉर्टेंट लगता है डिस्क्लोज करना, तो वो भी डिस्क्लोज होना चाहिए। तो ये मतलब अलग अलग चीजें हैं, जैसे ऑमिशन इम्पैक्ट, कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि यार ये नहीं बताएंगे तो कैसे होगा। और उसी का एक जैसे वैल्यू थ्रेशोल्ड है। सपोज आपको कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है ना, अपन देखते हैं ना किसी कंपनी को कोई बड़ा ऑर्डर मिलता है तो उसको वो इन्फॉर्म करते हैं कि साहब ये हमें 1,000 करोड़ का ऑर्डर मिला, एंड दे रिपोर्ट इट ऑन एनएससी फीस। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड में वैल्यू थ्रेशोल्ड में कहीं ना कहीं वो फॉल होता है, तो दैट इज व्हाई दे हैव टू रिपोर्ट। अब जो भी what obligation does a listed entity have regarding determination of materiality, मतलब materiality जब वो डिफाइन कर रहे हैं तो उनके और क्या क्या ऑब्लिगेशंस है। तो उनकी एक ऑब्लिगेशन ये है कि materiality के रिगार्डिंग वो एक पॉलिसी बनाए जो, और वो पॉलिसी बोर्ड अप्रूव करे, उसके अंदर पूरा डिफाइंड होगी किस ट्रांजेक्शन को हम मटेरियल मानेंगे और उसका डिस्क्लोजर किस तरह से होगा। और सेम जो भी वो पॉलिसी क्रिएट करते हैं रिगार्डिंग दिस मटेरियलिटी वो वेबसाइट पे भी डिस्क्लोज होगी। वो जो पॉलिसी का रिक्वायरमेंट क्या क्या है, तो पॉलिसी सबसे पहले एम्प्लॉइज को असिस्टेंस देनी चाहिए कि एम्प्लॉइज अगर विवेक जैन, हैं? विवेक जैन मेरा प्रेजेंटेशन भी शायद नहीं आ रहा क्या।
उसमें तो हो सकता है, लिमिट में एक्सक्लूड है ना, नहीं होती है, इंक्लूड नहीं होंगी वो, उसमें आप बन सकते हो। हाँ, स्क्रीन तो आई, स्क्रीन तो आई। राजवी का आ रही है, स्क्रीन आ रही है। So the next topic is corporate governance requirement on the listed entities. सबसे पहले जो भी उनकी अनलिस्टेड सब्सिडरीज है उनमें उनको अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उनके बोर्ड पे अपॉइंट करना पड़ेगा। और अगर कोई सब्सिडरी मटेरियल है तो चाहे वो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, या फिर इनकॉर्पोरेटेड इंडिया और उस इंडिया में हो या नहीं हो, इस पर भी एप्लीकेबल होगा। तो द क्वेश्चन इज व्हाट इज मटेरियल सब्सिडरी। अगर किसी सब्सिडरी के साथ एक सब्सिडरी है जिसका टर्नओवर या फिर नेटवर्थ उनके पूरे ग्रुप के 20% से ज्यादा होती है या फिर उसके नेटवर्क से ज्यादा होती है, तो वो सब्सिडरी उनकी मटेरियल सब्सिडरी होगी। उसके बाद जो भी बाकी सब्सिडरीज होंगी उसका जो लिस्टेड एंटिटी है उसको सारा रिव्यू करना पड़ेगा, चाहे वो सब्सिडरी मटेरियल है या नहीं है। उसके बाद जो वो सब्सिडरीज हैं उनमें अगर बोर्ड मीटिंग होती है तो उनके मिनट्स उनको अपने लिस्टेड एंटिटी को सबमिट करने पड़ते हैं। और फर्दर जो अनलिस्टेड सब्सिडरी है उनको पीरियडिकली एक स्टेटमेंट देना पड़ता है जिसमें वो सारे सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन बताती है। नाउ द सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शंस आर द ट्रांजेक्शंस दैट एक्सीड्स और लाइकली टू एक्सीड्स, या वो बाद में जाके हो सकते हैं एस्टिमेशन बेस्ड पे, जो 10% ऑफ टोटल रेवेन्यूज, टोटल एक्सपेंस और टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज ऑफ द ग्रुप उसमें एक्सीड करते हैं, तो उसको सबमिट करना पड़ेगा उससे रिलेटेड। उसके बाद जो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द डिस्पोजिंग ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय द एंटिटी इन इट्स मटेरियल सब्सिडरी, तो सबसे पहले आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा शेयर होल्डर्स की अप्रूवल से। और जो भी आप ये डिस्पोज ऑफ कर रहे हो शेयर्स को, उससे आपकी ओनरशिप नहीं रहनी चाहिए या फिर 50% आपके पास होनी चाहिए, उससे कम नहीं हो सकती। उसके बाद इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर आपने किसी जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है अगर किसी कोर्ट या ट्राइब्यूनल से अप्रूव्ड है तो वहाँ पे ये अप्लाई नहीं होती, उसमें आप उससे कम कर सकते हो। अब नाउ disclosure of the reasons for the resignation of the independent director in the listed entity. सबसे पहले डायरेक्टर को लेटर ऑफ रेजिग्नेशन देना पड़ेगा और उसमें रीजन बताना पड़ेगा कि वो क्यों रिजाइन कर रहा है। प्लस उसके साथ उसको कंफर्म करना पड़ेगा कि जो मैंने रीजन बताए हैं इसके अलावा और कोई रीजन एग्जिस्ट नहीं करता। और जो भी ये सब चीज है वो पार्ट ए ऑफ पैरा ए ऑफ शेड्यूल 3 उसमें क्लियरली बता रखा है कि 7 डेज के अंदर अंदर जब से रेजिग्नेशन हुआ वो ये बताना पड़ेगा। और ये मेटेरियलिटी गाइडलाइंस इसमें आप उनको देखने की जरूरत नहीं है कि ये मटेरियल है या नहीं, क्योंकि उसके बाद टाइमलाइन टू फिल द वैकेंसीज ऑफ द की मैनेजरियल पर्संस। सो फॉर द पोजीशन ऑफ द सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर, वैकेंसीज shall be filled within 3 months from the resignation, and in case of the CFO, which is also a KMP, the time limit of 3 months is also applicable. Further, अगर आपको किसी रेगुलेटरी से या किसी गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए उस वैकेंसी को फिल करने के लिए तो ये टाइम लिमिट 3 मंथ्स की जगह 6 मंथ्स है। Now, what are the reporting requirements in case a monitoring agency is appointed by the listed entity to review the utilization of the funds which are taken from the public issue, right issue, preferential allotment? तो सबसे पहले आपको लिस्टेड एंटिटी जो है उस पर एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी जो मॉनिटरिंग एजेंसी से आई है विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। उसके बाद जो भी रिपोर्ट आई है वो 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ ईच क्वार्टर वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी एक्सचेंज को। और जो ऑडिट कमेटी है उसको क्वार्टरली रिव्यू करना पड़ेगा उन्होंने जो मॉनिटरिंग एजेंसी है उन्होंने क्या सबमिट करा है अपने बारे में। नाउ द secretarial audit requirements. So first is, what is secretarial audit? The secretarial audit is an independent review of a company's non-financial aspects by an independent professional to ensure that the company or the listed entity requires with the laws and regulations. Further, it is also to improve the company's governance and risk management
एंड टू चेक द कंप्लायंस। मतलब बेसिकली है कि फाइनेंशियल्स के लिए तो अपने पास ऑडिट होती है, तो फाइनेंशियल्स को गवर्न करता है। तो उसके लिए जो नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स है कि कंप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा रेगुलेशन से, और जो बाकी चीजें हैं, उसके लिए सेक्रेटरी ऑडिट होती है। और ये फाइनेंशियल ईयर के एंड से 60 डेज के अंदर अंदर सबमिट करनी पड़ती है लिस्टेड एंटिटीज को, स्टॉक एक्सचेंजेस को। और जो भी रिपोर्ट होगी सेक्रेटरी ऑडिट की, या तो सेक्रेटरी ऑडिट साइन करेगा ऑडिटर, या फिर एक पीयर रिव्यूड कंपनी सेक्रेटरी जिसने सेबीज की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रखा है। सो व्हाट इज अ पीयर रिव्यूड कंपनी सेक्रेटरी? सो फर्स्टली वी वुड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पीयर रिव्यू। सो पीयर रिव्यू ये चीज है कि एक प्रोफेशनल है जिसका काम एक दूसरा प्रोफेशनल चेक करता है उस सेम फील्ड में। जैसे ऑडिट में होता है पीयर रिव्यू, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन चेक होता है कि आपने पूरे डॉक्यूमेंटेशन ऑब्टेन करे नहीं करे, वैसे। तो वैसे कंपनी सेक्रेटरी में जो होता है उसमें जो एक कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिसिंग है, या तो इंडिविजुअल में या फिर किसी फर्म में वो पार्टनर है जो ये चीजें परफॉर्म करती है, तो वही साइन कर सकता है, उसके अलावा और कोई साइन नहीं कर सकता है। Now, what are the disclosures for the modified opinion given by the statutory auditor in respect of the financial results? तो सबसे पहले जो मॉडिफिकेशन दिया है उसका कम्युलेटिव इम्पैक्ट क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, ये कंपनी को बताना पड़ेगा। और मैनेजमेंट के पास एक ऑप्शन है कि वो अपनी व्यूज पे दे सकती है कि भाई इसने ऐसा मॉडिफिकेशन क्यों दिया। उसके बाद अगर कोई उसका क्वांटिफिकेबल इफेक्ट है जो अपने फर्स्ट में डिस्क्लोज करा, ये अपन इम्पैक्ट नहीं दे पा रहे, तो उसमें पहले तो उसका रीजन देना पड़ेगा, और ऑडिटर उसको रिव्यू करेगा कि वो चीज़ सही है या नहीं, या कंपनी ने मतलब टू अवॉइड दैट रिक्वायरमेंट इन फर्स्ट पॉइंट उसको रीजन लिख दिया कि हम तो डिस्क्लोज नहीं हो रहा। और दैट दैट इज रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो मैनेजमेंट कैन अवॉइड एस्टिमेट ऑन गोइंग कंसर्न मैटर विद जस्टिफिकेशन, बिकॉज गोइंग कंसर्न इज नॉट ए फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ एंटिटी। Now, what are the approval and authentication requirements for the financial results? तो सबसे पहले बोर्ड को क्वार्टरली अप्रूव करना पड़ता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोर्ड को सबमिट होते हैं। उसके बाद सीईओ एंड सीएफओ है वो भी सर्टिफाई करता है कि हमने कोई इसमें कोई चीज़ छूटी नहीं है, और ये पूरी प्रॉपर है। उसके बाद जो ऑथराइज सिग्नेटरी होगा, तो 3 पर्सन में एक हो सकता है, या तो चेयरपर्सन है कंपनी का, चेयरपर्सन होगा ऑडिट कमिटी, या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी का, या फिर फुल टाइम डायरेक्टर। अगर इन तीनों में से कोई नहीं है, तो जो पर्सन उन्होंने अप्रूव ऑथराइज कर रखा है इस बेस पे कि ये साइन कर सकता है, ये उस चीज के लिए है। और उसके बाद जो लिमिटेड रिव्यू होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को प्रेजेंट करना पड़ता है ताकि वो आगे बोर्ड में सबमिट कर सके। नाउ व्हाट इज द परसेंटेज थ्रेशोल्ड फॉर द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर क्वार्टरली रिव्यू? So the limit at least 80% of the consolidated revenue or assets and profits ये रिव्यू होना चाहिए, और मतलब ऑडिट होनी चाहिए। और अगर इन केस अगर इनकी ऑडिट नहीं होती, तो जो आप ये फाइनेंशियल सबमिट करोगे फाइनेंशियल रिजल्ट्स, वो एक लिमिटेड रिव्यू के थ्रू अटैच होना चाहिए कि भाई हमारा लिमिटेड रिव्यू करा रखा है। अब नाउ व्हाट इज द बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट? तो सेबी ने जो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, इनको ये मैंडेटरी कर रखा है कि उनको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा इन्होंने एनवायरमेंट और सोशल गवर्नेंस एंड गवर्नेंस के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया है। और जो बाकी एंटिटीज है उन पे कंपल्शन नहीं है, वो चाहे तो डिस्क्लोज कर सकती है, चाहे तो नहीं कर सकती। व्हाट आर द कंटेंट्स फॉर द एनुअल रिपोर्ट फॉर द लिस्टेड एंटिटीज? तो सबसे पहले तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर उस पर एप्लीकेबल है तो, या फिर जैसे अपन ने पहले पढ़ा कि ऑडिटर ने कोई क्वालिफिकेशन दिया या मॉडिफाई करा रिपोर्ट, तो वो भी इसमें कवर होता है। उसके बाद जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें नोट्स एंड एक्सेल शेड्यूल्स सब कवर होते हैं। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर ओनली अंडर द इनडायरेक्ट मेथड, नॉट द डायरेक्ट मेथड। एंड थर्ड इज डायरेक्टर्स रिपोर्ट एंड मैनेजर्स डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट, जो ड्यूरिंग द ईयर मैनेजमेंट और डायरेक्टर के बीच हुआ। उसके बाद जो बिजनेस BRSR रिपोर्ट थी, या फिर जो अगर डिस्क्लोजर्स हैं जो कंपनी साइड में प्रेस्क्राइब कर रखे हैं वो भी सेबी को सबमिट करने पड़ते हैं। नाउ व्हाट इज द फॉर्मेट? आपको इस फॉर्मेट में सबमिट करना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंजेस को डिटेल्स और वेबसाइट पे। सो द XBRL फॉर्मेट है जिसमें अपन को स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करना पड़ता है, और ये एक सर्चेबल फॉर्मेट होना चाहिए। अगर कोई जैसे लिस्टेड एंटिटी है तो उनके सारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स बाकी रिजल्ट्स होते हैं वो पब्लिकली अवेलेबल होता है, पर उसको पब्लिक सर्च भी कर सके।
बस इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर आपने किसी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए वो पूरा किया है और वो सर्चेबल नहीं है, उस केस में ये कंपल्शन नहीं है कि वो सर्चेबल फॉर्मेट में हो। नॉन सर्चेबल फॉर्मेट में हुआ, दैट इज ओके। अब नाउ द स्टॉक एक्सचेंज अप्रूवल फॉर द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। जो भी अपन स्कीम फाइल करते हैं किसी ट्रिब्यूनल या कोर्ट के अंदर अंडर द कंपनीज एक्ट, तो उसमें सबसे पहले आपको स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल लेना पड़ता है कि हम ये स्कीम फाइल कर रहे हैं, ताकि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिले एक्सचेंज से कि हाँ आप फाइल कर सकते हो। उसके बाद जो एंटिटी है उस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को स्टॉक एक्सचेंजेस से जो मिला है तो उनको बताएगी अपील फाइल अरेंजमेंट के लिए, स्कीम के लिए। तो उसके बाद जो वैलिडिटी होगी which is that the no objection letter from the stock exchange is valid for only 6 months from the draft scheme of arrangement तो अपन ने सबमिट करा। और now the process for the unclaimed shares। तो सबसे पहले कंपनीज को 3 नोटिस, रिमाइंडर नोटिस सबमिट करने पड़ते हैं। जो भी उनका अलॉटी था, अगर उसने कोई रिप्लाई नहीं आता या फिर उन्होंने शेयर्स को नहीं लिया, तो उसके बाद अगर शेयर डीमैट फॉर्म में है तो अनक्लेम जो शेयर्स है वो डीमैट सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं विद वन ऑफ द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। और अगर शेयर्स फिजिकल फॉर्म में है, मतलब आजकल तो बहुत रेयर है कि फिजिकल फॉर्म में हो, तो सारे डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में होते हैं। अगर फिजिकल फॉर्म में है तो एंटिटी को जितने भी वो है वन फोलियो में एक ट्रांसफर करने मिलेंगे। फोलियो बेसिकली है टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट नंबर दैट इज गिवन टू समथिंग कि आपके पास ये स्टेटमेंट्स शेयर्स हैं, तो अनक्लेम सस्पेंड अकाउंट में जाना पड़ेगा और उनको डीमेटेरियलाइज कराना पड़ेगा उनको, एंटिटी को, मुद्दा का। और जो लिस्टेड एंटिटीज है उनको डिटेल्स मेंटेन करनी पड़ेगी इंडिविजुअल अलॉटी की, ये शेयर इसको अलॉट हुए थे और ये अनक्लेम्ड रह गए। और जिस भी अगर डीमैट शेयर्स है तो उनको डीमैट सस्पेंड अकाउंट में चलाना पड़ेगा या फिर अनक्लेम्ड सस्पेंड अकाउंट अगर फॉर्मेट फिजिकल फॉर्मेट में है तो। अब नाउ द क्वेश्चन इज स्पेशल राइट्स शेयर होल्डिंग लिमिट। तो जो एज पर रेगुलेशन 41A ऑफ द सेबी एनओडीआर रेगुलेशंस, टोटल वोटिंग राइट होती है एक स्पेशल राइट शेयर होल्डर्स की, वो 74% से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती। और इसमें जो उनकी जो नॉर्मल शेयर होल्डिंग लिमिट है वो भी काउंट होती है। सो ऐसा ये नहीं हो सकता कि एक ऐसा शेयर होल्डर जो है उनके पास 25% तो हो स्पेशल राइट्स के एंड 50% हो, क्योंकि वो कंबाइन हो जाएगा 75%, विच इज एक्सीड द लिमिट ऑफ 74%। And it is crucial for the companies with the special right shareholders to monitor their voting rights. So there is a proper compliance with the SEBI regulations और कोई जो भी material या potential breach है वो ना हो। Now there are some cases जहाँ पे जो voting rights होते हैं ऐसा special right shareholders के, उनमें ये होगा कि उनके पास जितने शेयर हैं उतने के ही वोट दे सकते हैं। लेकिन स्पेशल राइट में ये होता है कि आपके पास एक शेयर है पर आप एक से ज्यादा के लिए वोट कर सकते हो। तो इन कंडीशन में आपका एक शेयर एक ही वोट माना जाएगा। तो पहला है कि अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अप्रूवल हो रहा है या फिर अपॉइंटमेंट, मतलब अप्रूवल मतलब इन द सेंस अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल, तो उसमें आपको ऐसा को एक ही वोट देना पड़ेगा। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल, because if a promoter is willingly transfer the control to other entity, तो ऐसा शेयर्स है ओनली वन राइट। उसके बाद रिलेटेड पार्टी जो डील्स है, ये जब क्योंकि रिलेटेड पार्टी के लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, इसलिए तो इसमें जो स्पेशल राइट के शेयर होल्डर्स है उनका वोट वन वोट के लिए काउंट होगा। और जो बाकी सिनेरियोज है जैसे बाइंडिंग अप हो रहा है कंपनी का, या फिर आर्टिकल्स है मेमोरेंडम में कोई चीज चेंज हो रही है, या फिर कंपनी इंसॉल्वेंसी की तरफ जा रही है, या फिर जो आपने पब्लिक से पैसा लिया था वो आप अगर पर्पस के लिए यूज कर रहे हो जिस पर्पस के लिए लिया था, तो इन केसेस में भी ऐसा जो शेयर होल्डर्स होता है उनका वोट एक वोट काउंट होता है। नाउ व्हाट इज द रिकॉर्ड डेट इंटीमेशन। इन केस में आपको रिकॉर्ड डेट बतानी पड़ती है। सबसे पहले आपको डिविडेंड डिक्लेरेशन, क्योंकि जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उनको बताना पड़ता है कि इस दिन तक जो शेयर होल्डर था वो डिविडेंड के लिए एलिजिबल है। अगर जैसे राइट इशू या बोनस इशू होता है तो उसमें भी बताना पड़ता है कि इस तारीख पर जिसके पास शेयर थे उसको राइट्स शेयर्स के इशू मिलेंगे या फिर वो मिलेंगे। उसके बाद शेयर कन्वर्जन, when the shares issued for the conversion in debenture or in any other convertible securities,
तो इंटीमेशन इज नेसेसरी टू मैनेज द इक्विटी चेंजेस। अगर आपने कन्वर्टिबल इशू करा है तो अगर आप ऑप्शन देते हो सामने वाले को कि आप जो भी टेनर है उसके बाद आप इक्विटी में कन्वर्ट करा सकते हो नहीं करा सकते, तो ये भी इसके लिए इंटीमेशन देना पड़ता है। और उसके बाद इन तीनों के अलावा भी जैसे मर्जर या डीमर्जर होता है, उस केस में आपको बताना पड़ता है। या फिर जैसे मान लो किसी स्टॉक एक्सचेंज ने बताया कि आपको इन केस में रिपोर्टेड बतानी पड़ेगी शेयर होल्डर से या जो सिक्योरिटीज के होल्डर्स हैं, तो उसमें भी आपको ये सब चीज़ें बतानी पड़ेगी, क्योंकि इससे ट्रांसपेरेंसी एनहेंस होती है और ये जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रॉपर नॉलेज होती है कि कंपनी में क्या चीज़ किस टाइम पे हो रही है। नाउ टॉपिक इज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। तो जो टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज है मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे, उनको ये चीज बतानी पड़ती है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी कैसे बनी और तो लिस्टेड एंटिटीज को बताना पड़ता है कि उनकी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी क्या है। और अगर जो बाकी जो अगर अनलिस्टेड एंटिटीज है उन पे कंपल्सन नहीं है, पर वो चाहें तो बता सकती हैं एक्सचेंजेस को कि हमारी डिविडेंड की ये पॉलिसी है। अब उसके बाद जो डिविडेंड पॉलिसी बनेगी उसमें क्या क्या पैरामीटर्स कंपनी को ध्यान में रखना है। तो पहला तो ये है कि किस केसेस में जो शेयर होल्डर्स है तो किन केसेस में डिविडेंड एक्सपेक्ट करता है या नहीं करता। अगर अच्छा खासा प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है तो इज रीजनेबल टू एज्यूम कि कंपनी डिविडेंड देगी। बट ये है कि जैसे अब कंपनी ग्रोइंग फेज में है तो डिविडेंड नहीं देती, क्योंकि वो प्रॉफिट को प्लग बैक करके इन्वेस्ट करती है अपने उसमें ग्रोथ में। उसके बाद जो फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं वो भी कंपनी को ध्यान में रखना पड़ता है। एंड थर्ड इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स जो अपन को मार्केट में इन्फ्लुएंस कर सकता है। या फिर जैसे रेगुलेटरी चेंजेस होते हैं या फिर जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है उससे रिलेटेड। और ये जो पॉलिसी है उसमें आपको ये भी कवर करना पड़ता है कि रिटेन अर्निंग्स क्या है कंपनी के पास। कंपनी के पास अच्छी रिटेन अर्निंग्स है, इट इज मतलब रीजनेबल कि वो फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगी। अदर अदर की कंप्लायंस पॉइंट्स जो जितने भी डायरेक्टर होते हैं उनको हर कंपनी में बताना पड़ता है। अगर एक कंपनी से ज्यादा लोग डायरेक्टर है तो उनके बताना पड़ता है कि हम इस कंपनी में डायरेक्टर हैं और इस पोजीशन पे हैं। उसके बाद जो क्वार्टरली रिपोर्ट्स होती हैं वो सबमिट करनी पड़ती है लिस्टेड एंटिटीज को एज अ कंप्लायंस रिपोर्ट। और जो भी उनके पास जो कोई भी डिटेल्स होती है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, उनके क्या इंसिडेंट हुआ या फिर कोई ब्रीच हुआ, क्योंकि आजकल ये चीज़ें बहुत नॉर्मल है कि साइबर सिक्योरिटी से आगे कोई भी चीज़ हैक हो सकती है। ऐसी सिक्योरिटी प्रॉपरली मेंटेन नहीं है तो उसके भी एक चीज़ देनी पड़ती है। और बाकी है कि फ्रॉड का डिस्क्लोजर, अगर एंटिटी को पता चल जाता है कि उसके प्रमोटर ने, डायरेक्टर ने, उसके केएमपी ने या फिर सीनियर मैनेजमेंट ने या फिर किसी सब्सिडरी ने कोई फ्रॉड किया है तो वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा एक्सचेंज को। एंड लास्ट इज अदर इम्पोर्टेंट कंसिडरेशंस। जो टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज है उनको जो कोई भी इंफॉर्मेशन मार्केट में उनसे रिलेटेड कंपनी से बाहर आती है तो विद इन 24 आवर्स में उनको या तो उस चीज़ को बताना पड़ेगा कि वो सही है या नहीं, या फिर उसको मना कर दो, या फिर उस पर क्लैरिफाई कर सकते हो कि ये चीज़ आधी अधूरी बाहर आई है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन ये है। और उनके पास टाइम लिमिट होती है, पर जब ये इन्फॉर्मेशन बाहर आई तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको बताना पड़ेगा या क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि डिटेल सही थी या गलत थी। उसके बाद कौन सा केस हुआ अभी रिसेंटली सेम टाइम्स में 6 महीने पहले हिडनबर्ग, ये अभी पहले अपन ने जो डिस्कस किया ना वो था कि कंपनी के इंटरनली कोई चीज हुई, जैसे इंडसइंड बैंक है वो इंटरनल हुआ है तो देयर दे हैव कम आउट विद देयर डिस्क्लोजर कि साहब हमको 16 करोड़ का लॉस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि बाहर किसी ने कुछ आपके लिए कोई बात कह दी है ना, विच इज मटेरियल इन नेचर, तो देन यू हैव टू इमीडिएटली क्लैरिफाई कि साहब ये गलत है, पार्शियली सही है या बिल्कुल भी सही नहीं है, वट एवर इज दी योर स्टैंड एज ए कंपनी विद इन 24 आवर्स इट हैज टू बी इन्फॉर्म टू दी स्टॉक एक्सचेंज अगर इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है। मतलब हाँ, कोई आपने कोई रिपोर्टिंग हो गई
है ना, या इस तरह की कोई रिसर्च रिपोर्ट आ गई, या कोई भी ऐसी चीज आ गई जिसमें किसी ने आपको ये कह दिया, सोशल मीडिया पे कोई किसी ने कुछ डाल दिया कि साहब ये कंपनी में ऐसा ऐसा ये हो रहा है, वो हो रहा है, वट एवर, एंड इफ इट इज मटेरियल, इसकी वजह से प्राइस मोमेंट काफी हो गया, तो देन यू नीड टू इन्फॉर्म इट within 24 hours from the trigger of material price moment. उसकी वजह प्राइस से फ्लक्चुएशन हो गया, प्राइस फ्लक्चुएशन हो गया, तो उसकी आपको विद इन 24 आवर्स उसको बताना पड़ेगा कि ये इसकी क्या स्टेटस है, जो कि इंफॉर्मेशन आई है। तो इसका मतलब एज ए लिस्टेड कंपनी हमें न केवल अपना इंटरनल मैकेनिज्म, बल्कि बाहर अगर किसी ने कुछ कह दिया है, कोई बड़ी रिपोर्ट इशू कर दिया आपके लिए, तो उसको भी कैसे टैकल करना है ये भी आना चाहिए। सेकंड पॉइंट ये है कि सर करंट स्टेज क्या है उस इंफॉर्मेशन का, Current stage of वो भी the- बताना पड़ता है, वो है। थर्ड इज डीमेटेरियलाइजेशन ये जितना भी आप देखो ना, तो आप you should also link with that what has actually happened around you, तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। अब जैसे हिडनबर्ग की रिपोर्ट की अपने बात करी, तो क्लिक किया ना कि नहीं यार ये ऐसा कुछ हो रहा है, तो इसको लिंक भी करिए, और साथ साथ में आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसके साथ साथ, जैसे अब आप लोगों को इंडसइंड बैंक का पता ही नहीं था, तो मतलब कहीं ना कहीं गैप है। एज ए फाइनेंस स्टूडेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट, एटलीस्ट ये थोड़ी बहुत चीजें जो मेजर हो रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको हर चीज का ट्रैक रखना चाहिए, बट ये जो मेजर इवेंट्स होते हैं, मेजर इंफॉर्मेशन न्यूज आती है, ये हमें पता होनी चाहिए। एंड वी शुड अगेन गो इनटू द डेप्थ, जब भी एक बार अपने को पता चले कि नहीं यार ये चीज क्यों हो रही, जब भी मौका मिले वी शुड एक्चुअली हैव दिस हैबिट। ठीक है, जो लिस्टेड एंटिटी होती है उसको ये इंश्योर करना पड़ता है कि जो भी उसके प्रमोटर है या फिर ग्रुप ऑफ प्रमोटर है, उनकी जितनी भी सिक्योरिटीज है या फिर जो शेयर्स उन्होंने होल्ड कर रखे हैं वो डीमेटेरियलाइज फॉर्मेट में हो, और वो इन द सेम इज मेंटेन ऑन अ कंटिन्यूड बेसिस एज स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। उसके बाद है फंड यूटिलाइजेशन डिस्क्लोजर। अगर एंटिटी ने अगर पब्लिक से फंड रेज करा है या फिर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन से, तो लिस्टेड एंटिटीज को हर साल ये बताना पड़ता है कि उस फंड का कितना परसेंट जो पैसा था वो यूटिलाइज हो चुका है और इतना यूटिलाइज नहीं हुआ है। सो दैट्स इट, थैंक यू। Thank you, Yash. Now I will cover the remaining chapters. Firstly, I'll begin with chapter number 5. It deals with the obligations of listed entity, which has listed its non-convertible securities. Now, next few slides will deal about those listed entities which has listed its non-convertible securities. Intimation to stock exchange regarding board meetings. There are following 5 matters. If in case board meeting is going to be conducted on these matters, then the same shall be intimated to stock exchange 2 days prior of such meeting. Now, while calculating such 2 days, date of meeting and date of intimation shall be excluded. Now, we will discuss the key matters. An alteration in the form or nature of non-convertible securities, an alteration in the date of interest, dividend, and redemption payment. Financial results with quarterly or annual as the case may be. Fundraising by way of issuance of non-convertible securities. Any matter affecting the right or interest of holders of non-convertible securities. Intimation to stock exchange regarding general meetings and meeting of non-convertible security holders. Listed entity shall intimate the stock exchange not later than the date of commencement of dispatch of notices in the following cases. Now there are 2 cases. If a meeting of security holders are conducted on these matters, then the same shall be intimated to the stock exchanges. Any annual general meeting or extraordinary general meeting that is proposed to be held for obtaining shareholder approval for the proposals of financial results, whether quarterly or annual, fundraising by way of issuance of non-convertible securities. Any meeting of the holders of non-convertible securities in relation to the proposal affecting the right and interest of holders of non-convertible securities. Submission of quarterly financial results. Now, for every quarter end, the results shall be submitted to the stock exchange within 45 days of such quarter. However, there is an exception for the last quarter in which we have 60 days. मतलब हमें 60 days के अंदर रिजल्ट सबमिट करने पड़ेंगे.
एक मिनट, अरे वो बंद। Approval, authentication, and publication of financial results. Limited review report. Unaudited financial results on quarterly basis shall be accompanied by a limited review report prepared by the stat auditors of the company. Board approval. अब जो unaudited reports results हैं financial statements that shall be approved by the board of directors. Signed submission. The financial results submitted to the stock exchange shall be signed by the chairperson or MD और a whole time director, और अगर इनमें से कोई भी प्रेजेंट नहीं है तो एक ऐसा डायरेक्टर जिसको बोर्ड ने ड्यूली ऑथराइज कर रखा हो. एनुअल ऑडिट. The annual audited standalone and consolidated financial results for the year shall be submitted within 60 days from the year end. However, in case of C&AG audited entities, the same is 9 months from the end of the financial year. Reporting obligations for utilization of proceeds. जो नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज हमने इशू करी है उससे जो हमें प्रोसीड्स मिले हैं उसके रिगार्डिंग कुछ रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस हैं जो हम सेबी ने भी क्लैरिफाई करे. स्टेटमेंट ऑफ यूटिलाइजेशन specifies how funds from non-convertible securities have been used until fully utilized or until the purpose is achieved. मतलब जो हमने फंड्स रेज करे उसको किस पर्पस के लिए हमने यूज करे और उसमें से कितना फंड हमने अभी यूज कर लिया कितना बचा है. Disclosure of deviations. Any significant deviations in fund utilization from the stated purpose must be reported to stock exchange. मतलब हमने जिस पर्पस के लिए फंड्स रेज करे थे उसके अलावा अगर किसी पर्पस के लिए फंड्स को यूटिलाइज किया है तो हमें वो डेविएशन रिपोर्ट करना पड़ता है. एनुअल रिपोर्ट डिस्क्लोजर्स फॉर लिस्टेड एंटिटीज. एनुअल रिपोर्ट में हमें क्या क्या चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी. पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हिच कंप्राइजेस ऑफ बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लोज एंड एक्सेट्रा. ऑडिट क्वालिफिकेशंस. स्टेटमेंट ऑन इम्पैक्ट ऑफ ऑडिट क्वालिफिकेशंस इफ एप्लीकेबल तो वो भी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी. रिपोर्ट्स. ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड डायरेक्टर्स रिपोर्ट. डिबेंचर ट्रस्टीज की इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग देयर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन और रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स. ये 5 चीजें हमें एनुअल रिपोर्ट में डिस्क्लोज करनी पड़ेगी. वॉलंटरी डीलिस्टिंग फ्रेमवर्क. चैप्टर 6A है जो बताता है कि अगर कोई नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी है या नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, अगर हमें उसको स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट करना है तो उसके रिगार्डिंग हमें क्या प्रोसेस फॉलो करना है. तो अब देखते हैं वो केसेस वेयर चैप्टर 6A डज नॉट अप्लाई टू डीलिस्टिंग. मतलब जो हम आगे प्रोसीजर पढ़ने वाले हैं वो इन केसेस में अप्लाई नहीं होगा. इन केसेस में डीलिस्टिंग नहीं होगी. मतलब if the entity has issued non-convertible securities via public issue, if there are more than 200 security holders excluding QIBs for any listed security, if SEBI or stock exchange delisted the securities as a penalty, if the delisting is due to security redemption, if delisting is a part of an NCLT approved resolution plan under IBC. अगर इन 5 केसेस के अंदर डीलिस्टिंग हो रही है तो हमें चैप्टर 6A का प्रोसीजर फॉलो नहीं करना. उसके लिए अलग प्रोसीजर या फिर वो जैसे नीचे वाले 3 केसेस में तो वो वैसे ही डिलिस्ट हो गया, वैसे ही डिलिस्ट हो गया, कंपल्सरी डिलिस्ट. और ऊपर वाले जो 2 केसेस है ना वो ये कहना चाह रहे हैं आगे जो लिस्टिंग प्रोसेस है वो थोड़ा रिलैक्स्ड होगा. हाँ. तो क्योंकि ये पब्लिक इश्यू के थ्रू है या यहाँ पे 200 से ज्यादा शेयर होल्डर्स हैं. हाँ, तो वॉल्यूम है उसमें से तो उनके लिए उन्होंने डिफरेंट डिलिस्टिंग प्रोसेस बता रखा होगा. NCLT approved resolution plan and IBC implication. अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि वन ऑफ द एक्सेप्शन इज इफ अब NCLT approved प्लान के अंदर हमें डीलिस्टिंग करवानी है तो उस केस में लिस्टेड एंटिटी के ऊपर ये रिक्वायरमेंट है कि वो स्टॉक एक्सचेंज को 1 दिन के अंदर बताए. मतलब जैसे प्लान अप्रूव हुआ है तो 1 दिन के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करे. तो अब हम इसका प्रोसेस समझेंगे कि वॉलंटरी डीलिस्टिंग का क्या प्रोसेस होता है. इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर डीलिस्टिंग की टाइमलाइंस. Application deadline. Listed entity must apply to stock exchange for in principle approval for delisting within 15 working days from the letter of the board resolution approving delisting or any other statutory regulatory approval. मतलब कि कंपनी को एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है स्टॉक एक्सचेंज को रिगार्डिंग द इन प्रिंसिपल अप्रूवल. फिर स्टॉक एक्सचेंज के पास 15 डेज का टाइम है टू वेदर रिजेक्ट और एक्सेप्ट द एप्लीकेशन एज गिवन बाय द कंपनी एंड ग्रांट द इन प्रिंसिपल अप्रूवल. अब स्टॉक एक्सचेंज जो इन प्रिंसिपल अप्रूवल ग्रांट करेगा वो कुछ कंडीशंस को चेक करने के बाद ग्रांट करेगा. तो वो कंडीशंस है नेसेसरी BOD अप्रूवल कि मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से नेसेसरी अप्रूवल कंपनी को लेना था वो कंपनी ले चुकी है क्या. रिजॉल्व्ड इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस कि कोई इन्वेस्टर के ग्रीवेंसेस पेंडिंग तो नहीं पड़े. पेमेंट ऑफ ऑल लिस्टिंग फीस और पेनल्टीज
कि सेबी की या कोई और अदर लॉ में कोई पेनल्टीज थी, वो हमने पूरी पे कर दी है क्या? कंप्लायंस विद ऑल द प्रोविजंस, पेंडेंसी ऑफ एनी मेजर लिटिगेशंस, एनी अनपेड सेबी पेनल्टीज। तो ये कुछ कंडीशंस है, इनके बेसिस पे जो स्टॉक एक्सचेंज है वो ग्रांट करेगा इन प्रिंसिपल अप्रूवल। अब सेबी ने अगर हमें इन प्रिंसिपल अप्रूवल ग्रांट कर दिया है, तो उसके बाद हमें जो सिक्योरिटी होल्डर्स है उनका अप्रूवल चाहिए होता है। तो सिक्योरिटी होल्डर्स के अप्रूवल के लिए हमें उनको एक नोटिस भेजना पड़ता है सेबी के अप्रूवल मिलने के 3 दिन के अंदर अंदर। Following in principle approval, the listed entity must commence the process of obtaining necessary approval from all the holders of non-convertible debt securities or non-convertible redeemable preference shares within 3 working days. The listed entity need to ensure necessary approval from all holders of non-convertible debt securities. Next, security holder approval timelines. तो अब सिक्योरिटी होल्डर्स को हमने नोटिस भेज दिया 3 दिन के अंदर। अब सिक्योरिटी होल्डर्स के पास हमें उनसे 15 डेज के अंदर अप्रूवल लेना होता है। अप्रूवल फ्रॉम सिक्योरिटी होल्डर्स मस्ट बी ऑब्टेन्ड विद इन 15 वर्किंग डेज ऑफ द सेंडिंग द डीलिस्टिंग नोटिस। अब एक केस हो सकता है, अगर हमने नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज है, अगर हम उसकी डीलिस्टिंग करवाने वाले हैं, तो उसके केस में हमें जो डिबेंचर ट्रस्टी होता है उनका एक नो ऑब्जेक्शन लेटर हमें ऑब्टेन करना पड़ता है, उसके बाद ही डीलिस्टिंग सक्सेसफुल हो सकती है। When is a delisting proposal considered unsuccessful? मतलब जो delisting का proposal है जो चैप्टर 6 में हमें दे रखा है, वो कब unsuccessful होगा? First is rejection. If stock exchange reject the in principle approval, the delisting proposal is deemed unsuccessful. This is a critical initial hurdle. मतलब जो in principle approval जिसके लिए हमने एप्लीकेशन सबमिट करी थी, अगर वो in principle approval रिजेक्ट कर देता है स्टॉक एक्सचेंज, कुछ भी रीजन हो सकता है, फॉर एग्जांपल हमने सेबी की पेनल्टीज थी वो पूरी पे नहीं करी है, या फिर कुछ हमारा मटेरियल लिटिगेशंस पेंडिंग पड़े थे, तो उस वजह से स्टॉक एक्सचेंज जो हमारा इन प्रिंसिपल अप्रूवल है वो रिजेक्ट कर सकता है। सेकंड इज सिक्योरिटी होल्डर डिसेंट। इफ सिक्योरिटी होल्डर डू नॉट अप्रूव द डीलिस्टिंग, द प्रपोजल फेल्स, इंडिकेटिंग अ लैक ऑफ स्टेकहोल्डर कंसेंसस। थर्ड इज डिबेंचर ट्रस्टी। फॉर डेट सिक्योरिटीज द प्रपोजल इज अनसक्सेसफुल इफ द डिबेंचर ट्रस्टी डज नॉट इशू अ नो ऑब्जेक्शन लेटर। हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि डिबेंचर होल्डर से हमें डिबेंचर ट्रस्टी से हमें नो ऑब्जेक्शन लेटर ऑब्टेन करना पड़ता है, अगर हम वो ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं तो डीलिस्टिंग प्रपोजल अनसक्सेसफुल हो जाता है। फाइनल एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर डीलिस्टिंग नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। अब हमें सबसे पहले इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना था, हमने वो ले लिया। हमें सिक्योरिटी होल्डर से अप्रूवल लेना था, हमें वो भी मिल गया। फिर हमें नो ऑब्जेक्शन लेटर लेना था डिबेंचर ट्रस्टी से, हमें वो भी मिल गया। अब उसके बाद एक फाइनल स्टेज है जिसमें हमें एक फाइनल एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है स्टॉक एक्सचेंज को। Entities must submit the final delisting application to stock exchange within 5 working days of obtaining security holder approval. Stock exchange must process the application within 15 working days, provided it is complete. Official delisting. Upon approval, the securities will be officially delisted from the stock exchange, marking the culmination of the delisting process. तो हमें जब स्टॉक एक्सचेंज से फाइनल अप्रूवल मिल जाता है तो हमारी सिक्योरिटीज डीलिस्ट हो जाती है स्टॉक एक्सचेंज से। ऑब्लिगेशन ऑफ एंटिटीज विद लिस्टेड IDRs। तो IDRs का कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले। अगर किसी फॉरेन कंपनी को इंडिया से फंड्स रेज करना है तो वो डायरेक्ट इंडिया में शेयर्स इशू नहीं कर सकती। उसके लिए उसको जो इंडिया की डिपॉजिटरी है, फॉर एग्जांपल NSDL या CDSL, उनके पास पहले शेयर्स इशू करने पड़ते हैं। फिर जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है अपना NSDL, वो उसको कन्वर्ट करता है डिपॉजिटरी रिसिट्स में, जो कि इंडियन करेंसी में डिनोमिनेटेड होती है। फिर वो फर्दर इंडियन इन्वेस्टर्स को इशू किया जाता है। Understanding Indian depository receipts. An IDR is an instrument created by a domestic depository in India, authorized by a company incorporated outside India. This allows foreign companies to raise capital from Indian investors. IDRs bridge the gap between foreign companies and Indian market. Depository agreement. Depository agreement is a crucial agreement between the listed entity and the domestic depository. मतलब कि जो फॉरेन कंपनी है और जो NSDL है, CDSL है, उनके बीच का जो एग्रीमेंट होता है उसको डिपॉजिटरी एग्रीमेंट बोलते हैं। Security holder. A security holder refers to an individual or entity holding the security or equity shares of the listed entity in its home country. तो जो भी इंडिया के इन्वेस्टर है जिसके पास IDR जिसने रिसीव करी है वो सिक्योरिटी होल्डर होता है। लैंग्वेज एंड ज्यूरिसडिक्शन रिक्वायरमेंट्स। लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। अब जो IDR इशूइंग कंपनी है वो इंडिया की नहीं है, वो बाहर की है। तो ऐसा नहीं कि वो उस कंट्री में जो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है जो फॉलो होती है वो यहाँ पे भी फॉलो होगी। तो इसके लिए जो सेबी ने है ना एक लैंग्वेज डिटरमाइन कर दी है कि यही लैंग्वेज फॉलो होगी।
दैट इज इंग्लिश। तो सारे कम्युनिकेशन जो होंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होंगे। Jurisdiction. The competent courts, tribunals, and regulatory authorities in India possess jurisdiction over disputes between the listed entity and the stock exchange or investors. This jurisdiction applies to IDRs offered, subscribed, or bought in India. Disclosure of material events and information. जो भी IDR से related material events हैं या कुछ भी उसमें changes हुए हैं तो हमें वो disclose करने पड़ते हैं stock exchange को. Listed entity must promptly inform the stock exchange of all material events and price sensitive information. Disclosure should have a bearing on the performance or operations of the listed entity to ensure transparency and investor awareness. Change intimation. Entities must promptly inform the stock exchange of any change in key personnel, including compliance officers, auditors, managing directors, board members. अगर कोई depository participant या registrar या custodian बैंक में कोई change होता है तो हमें वो भी inform करना पड़ेगा. Reporting obligations for IDR issuers. जो IDR issuing company है उसको कुछ चीजें report करनी पड़ेगी. First is quarterly holding pattern. Listed entities must file an IDR holding pattern with the stock exchange quarterly within 15 days from the end of each quarter. This report should follow the format specified by the board. Second is compliance disclosures. Entities must file details with the stock exchange as required by the listing authorities or stock exchange in their home country or other jurisdictions. Disclosures must include the shareholding pattern. Third is restructuring. अगर कोई इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या कोई एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होता है, मर्जर अमलगमेशन ये सब होता है, तो उस केस में जो प्री अरेंजमेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न था और पोस्ट अरेंजमेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न था वो दोनों चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी. Dividend voting and delisting of IDRs. Dividend payments. Dividend must be paid as per the time frame applicable in the home country, reaching IDR holders on or before the date fixed for the equity shareholders. मतलब कि जैसे जो नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनको जब डिविडेंड मिलता है उसी टाइम फ्रेम में आईडीआर होल्डर्स को भी डिविडेंड मिल जाना चाहिए. सेकंड इज वोटिंग. Entities ensure proxy forms are sent to IDR holders, allowing them to vote for or against the resolutions. This ensures that IDR holders can participate in the decision-making process of the listed entity. मतलब कि जो IDR holders है उनको भी वोटिंग का राइट ग्रांट करने के लिए उनके पास प्रॉक्सी फॉर्म सेंड किए जाते हैं ताकि वो भी वोटिंग जो प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट कर सके. Delisting. IDRs can be delisted voluntarily or mandatorily. Voluntary delisting requires fair treatment to IDR holders, while mandatory delisting occurs if underlying equity shares are delisted. Now next is navigating obligations for listed entities issuing securitized debt instruments. Now what is securitized debt instrument? For example कोई बैंक है, बैंक के पास बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं जिनको लोन ग्रांट करते हैं, तो वो जो लोन का एक पूल बनता है वो पूल वो आगे किसी को सेल कर सकते हैं. उसके लिए वो एक कोई स्पेशल पर्पस व्हीकल या स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटीज बनाते हैं जो कि एक ट्रस्ट के फॉर्म में होता है. उसको वो लोन जो है वो सेल कर सकते हैं और फिर वो जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है ना वो आगे उन सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट में उसको कन्वर्ट करता है और आगे लोगों को इशू कर सकता है. Applicability. The provision of Chapter 8 applies specifically to special purpose distinct entities issuing securitized debt instruments. The trustees of these SPDs bear the responsibility of ensuring full compliance with all relevant regulations. Intimation to stock exchange. तो जो भी SPDE मतलब स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी है उसने जो भी सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट इशू किया है ना उसके बारे में उसको स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करना पड़ेगा. Filing and reporting requirements to the exchange. Monthly submissions. Listed entities must submit statements, reports, and pertinent information, including financial details about the schemes, to the stock exchange on a monthly basis. This must be done within 7 days from the month's end or the actual payment date. Servicer role. These submissions can be made either directly by the listed entity or through the servicer, ensuring the stock exchange receives timely and accurate updates. Loan level information. In addition to regular reports, listed entities are required to provide loan level information to the stock exchange without revealing the specifics of individual borrowers. This information is crucial for transparency. Rating reviews and investor information. तो जो भी सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट है उसके रिगार्डिंग हमें एक क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन करनी पड़ती है.
एनुअली, जनरली हम एनुअली ऑब्टेन करते हैं। तो जो भी रेटिंग हमने ऑब्टेन करी है या उसमें कोई भी चेंजेस आए हैं तो हमें स्टॉक एक्सचेंज को वो इन्फॉर्म करना पड़ता है। इन्वेस्टर कम्युनिकेशन, listed entities are required to provide loan level information without identifying individual borrowers to their investors. They must also inform investors of any rating revisions resulting from periodic credit rating reviews. Structural modifications and unclaimed funds. जो भी हमारा सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट है, अगर हम उसका कुछ कूपन चेंज करते हैं या कुछ डेट ऑफ रिडेम्पशन चेंज करते हैं या कुछ भी हम मटेरियल चेंज कर रहे हैं उसमें, तो हमें उसके रिगार्डिंग स्टॉक एक्सचेंज से प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। बिना उसके हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ट्रस्टी अप्रूवल, an application for such modification can only be made to the stock exchange after obtaining approval from the trustees, ensuring all parties are aligned. Handling unclaimed funds. Listed entities are prohibited from forfeiting unclaimed interest and principal. After 7 years, these unclaimed amount must be transferred to the Investor Protection and Education Fund. Obligation of listed entities in case of mutual funds and social enterprises. Mutual fund unit listing key obligations. Next chapter is chapter number 9, which deals about the mutual funds. Chapter 9 applies to the asset management companies managing mutual fund schemes listed on recognized stock exchange. Compliance with SEBI Mutual Funds Regulation 1996 remains mandatory. Disclosure requirements. तो सेबी ने कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट से स्पेसिफाई कर रखी है जो भी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है जो अपनी म्यूचुअल फंड की स्कीम्स इशू करती है उनको कंप्लाई करनी पड़ेगी। The disclosure requirements are as follows. Listed entity must submit daily net asset value, monthly and half yearly portfolio reports, unit capital movements, scheme ratings, imposition of penalties and material litigations, and any prohibitory orders restraining the listed entity from transferring units registered in the name of the unit holders. Social enterprises. चैप्टर 9A डील्स अबाउट द सोशल एंटरप्राइजेस। अब सोशल एंटरप्राइजेस क्या होती है? इसमें दो चीजें आती हैं। पहली तो होती है फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज जो कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, एंड सेकंड इज नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं। तो ये दोनों चीजें कंप्राइज करती है फ्रॉम ऑफ सोशल एंटरप्राइजेस। NPOs must make annual disclosures on matters specified by the board to the SSEs within 60 days from the financial year end, along with any additional requirements specified by the SSEs. तो मतलब SSEs ने कुछ भी रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई कर रखी है तो हमें वो फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 60 डेज के अंदर कंप्लाई करनी पड़ेगी। Social enterprises must report any event materially impacting the achievement of planned outputs or outcomes to the relevant stock exchange within 7 days from the occurrence of the event. मतलब कि अगर सोशल एंटरप्राइजेस में कुछ भी मटेरियल इवेंट होता है, फॉर एग्जांपल उनके प्रेमाइसेस में आग लग गई, तो ये जो भी मटेरियल इवेंट है जिनकी वजह से उनका जो आउटपुट है या जो उनके आउटकम्स है उस पर हैम्पर होने वाला है बहुत ज्यादा, तो हमें वो रिपोर्ट करनी पड़ेगी 7 डेज फ्रॉम द अकरेंस ऑफ सच इवेंट। Impact reporting and fund utilization for NPOs. Annual impact report. Social enterprises must submit an annual impact report which is assessed by a social impact assessment firm. Quarterly fund utilization. Listed NPOs must submit quarterly statements to the SSEs on money raised, utilized and the remaining unutilized balance. मतलब कि जो NPOs ने जो भी फंड्स रेज किया है ना उसको उसने कहाँ पे यूटिलाइज किया है, कितना पोर्शन अनयूटिलाइज्ड है और किस कैटेगरी वाइज उसने उसको कैसे यूटिलाइज किया है, ये तीन चीजें उसको रिपोर्ट करनी पड़ेगी। Unutilized funds. Unutilized amounts must be kept in a separate bank account and not commingled with other organizational funds. Impact reporting is essential for social enterprises to demonstrate their effectiveness and attract further investment. Clear. बोले तो मैंने क्विज मांगा था। वो बोल नहीं रहा था। उन्होंने क्विज बोला था मेरे को भेज देना, मैं कर दूंगा। तो फिर एक बार रोहन से पूछना था। तेरे को थोड़ी बोला गई कैसे? Duties and obligations of the recognized stock exchange. The recognized stock exchange plays a crucial role in ensuring compliance and transparency in the operations of listed entities, including mutual fund and social enterprises. The obligations of recognized stock exchange include monitoring disclosures, enforcing penalties for non-compliance,
and disseminating information to the public. मतलब कि जो भी कंपनी से हमें इंफॉर्मेशन मिली है, हमने तो सारी चीजें उनसे बुलाते हैं, उनसे मंगवाते हैं, तो वो सेम हमें स्टॉक एक्सचेंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको अपनी वेबसाइट पे अपलोड करें. RSCs act as a first line of defense in maintaining market integrity and investor confidence, and support the overall regulatory framework established by SEBI. Stock exchange role in information dissemination. Recognized stock exchange must immediately disseminate any received intimations, information, filing, reports, statements, or documents from listed entities on their website. It is responsibility of the stock exchange to review the statement on impact of audit qualifications and the accompanying annual audit report. Stock exchange monitor compliance and adequacy of disclosures by listed entities. The recognized stock exchange shall submit a report to the board regarding the same. मतलब कि सारे जो डिस्क्लोजर्स है और कंप्लायंसेस है वो चेक करने के बाद वो बोर्ड को यानी कि सेबी को एक रिपोर्ट इशू करता है. Enforcement and penalties for non-compliance. If a listed entity fails to pay any fine imposed on it within such period as specified from time to time by the recognized stock exchange after a notice in writing has been served to it, the stock exchange may initiate exchange action. अगर स्टॉक एक्सचेंज ने कोई फाइन इम्पोज किया है और उसका नोटिस भी हमने कंपनी को इशू कर दिया, बट फिर भी कंपनी है ना उस फाइन को पे नहीं कर रही है, तो उसके रिगार्डिंग फिर स्टॉक एक्सचेंज 4 एक्शंस ले सकता है. फर्स्ट इज इम्पोजिशन ऑफ फर्दर फाइन्स, और फाइन्स इम्पोज करेगा. सस्पेंशन ऑफ ट्रेडिंग, उसके जो शेयर्स है उसको फ्रीज कर देगा, उसको ट्रेड नहीं कर सकते. फ्रीजिंग ऑफ प्रमोटर ग्रुप होल्डिंग ऑफ डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज एज मे बी एप्लीकेबल इन कोऑर्डिनेशन विद डिपॉजिटरीज. जो भी प्रमोटर ग्रुप के पास जो भी होल्डिंग है ना, मतलब अदर देन द फ्री फ्लोटिंग कैपिटल, उसको वो ब्लॉक कर देगा कि आप उसको ट्रेड नहीं कर सकते ओपन मार्केट में. एनी अदर एक्शन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, बोर्ड उसको फर्दर पावर्स इशू कर सकती है. सेबीज पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशंस एंड रिलैक्सेशंस. अब क्या होता है कि कोई न्यू स्टार्टअप है या कोई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करना चाहता है, तो सेबी के बहुत सारे हमने देखा कि बहुत सारे वो प्रोविजंस है जिसके रिगार्डिंग उसको कंप्लाई करना पड़ेगा. तो इस चक्कर में सेबी कुछ एग्जेम्पशंस ग्रांट कर सकती है. SEBI may exempt entities from certain LODR provisions for up to 12 months in case of that promote technological innovation and allow for testing of new products, processes, or business models in a regulatory environment. Relaxation. SEBI may relax compliance requirement for listed entities if, मतलब ये 5 केसेस है जिसके अंदर सेबी है ना रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर सकता है कंपनीज को, मतलब कि जो इतने सारे प्रोविजंस है उसमें से कुछ प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं करने पड़ेंगे. So the following 5 cases are: another law regulation takes precedence over SEBI rules. For example, कोई इंश्योरेंस कंपनी है तो उस पे IRDAI एक्ट लगता है, तो अगर उसने कुछ प्रोविजंस का रिगार्डिंग उसको बोल रखा है तो उससे कंप्लाई करना चाहिए, फिर सेबी उसको ग्रांट कर सकते हैं exemptions. Strict compliance would cause undue hardship to investors. The disclosure requirement is not relevant to a specific industry or class of entities. The requirement is purely technical in nature. The non-compliance is caused due to factors beyond the entity's control. अब हमने देखा कि कुछ रिलैक्सेशन जो सेबी प्रोवाइड कर सकता है कंपनीज को, बट उसके लिए कंपनी को एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी. The company need to submit a detailed application specifying grounds for relaxation, और एप्लीकेशन के साथ उसको नॉन रिफंडेबल फीस जमा करवानी पड़ेगी ऑफ ₹1 लाख. अगर वो ये दोनों चीजें करेगा तो ही सेबी उसको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेगा. Seeking relaxation from SEBI regulations requires a formal application process. Detailed documentation and payment of the specified fee are necessary for consideration. Thank you. क्या होता है, टाइम लगेगा? 5 मिनट लगेंगे. 5 मिनट में अपन इनको वो का है तो बना अपना काम करते करना ना क्विज. कितनी देर अटेंड किए तो यू कैन ट्राई. जितने अपन इनको वो दे देते हैं. हाँ भाई, क्या समझ में आया? इतनी सारी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, इतने सारे ऑब्लिगेशंस हैं. एज ए प्रोफेशनल many times, either as an auditor
or as a CFO, or as a compliance officer, or as a director in a company, which is listed company. अभी क्या है कि लोगों को एक नशा सा छाया हुआ है कि मुझे आईपीओ जाना है, हमें हमारी कंपनी को लिस्ट कराना है, तो जिसको कराना वो कराएगा लिस्ट, इसमें कोई डाउट नहीं। आप उसको रोक नहीं सकते हो, लिस्ट तो वो कंपनी होगी, आप नहीं कराओगे तो कोई और करा देगा। तो व्हाट इज द अपकमिंग थिंग्स, व्हाट आर द अपकमिंग थिंग्स बिकॉज ऑफ दिस लिस्टिंग, वो ये सब कुछ है। तो अपना जो रेलेवेंस है, प्रोविजंस है, बहुत अच्छी बात है, हमें याद होने चाहिए, ये भी अच्छी बात है। लेकिन जब हम किसी लिस्टेड कंपनी में काम करते हैं, है ना, इन ईदर ऑफ द पोजीशन, तो आपका रोल जो है वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार आपको ये भी सोचना पड़ता है कि वेदर यू नीड टू एक्सेप्ट दैट पोजीशन और नॉट, क्योंकि अगर इतने सारे लोग, इतनी सारी कंपनीज लिस्टिंग में चली जाएगी और पीछे काम करने वाले लोग नहीं रहेंगे, तो कितने काम है, पढ़ा ना तुम तीनों ने, तो कितने सारे काम है। क्या हर एक लिस्टिंग कंपनी इन सारे कामों को कर सकती है क्या? कोई छोटी बड़ी लिस्टेड कंपनी हो, या कोई नई लिस्ट हो रही हो, या कंपनी मान लो उसके सिस्टम शुरू से ही साउंड है, कॉर्पोरेट है, ऑलरेडी कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, वो लिस्ट होगी, ठीक है, उसका मैकेनिज्म हो सकता है। लेकिन जो यहाँ पे मान लो जो लोकल कंपनीज लिस्ट हो रही है, या अपन ने पास में देखा होगा कि कई सारी कंपनी जो है वो लिस्ट हुई है पहले, तो क्या वो कंपनीज का काम करने के लिए हमें कोई उसमें पोजीशन लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? दिस कैन ऑल्सो बी डिसीजन ना। कल को आप किसी कंपनी में सीएफओ बन रहे हो, तो है ना, इट्स ए गुड टू राइट एज ए सीएफओ, एज ए डिजिग्नेशन कि हाँ यार मैं सीएफओ हो गया हूँ। लेकिन अभी आप ऐसी कंपनी में चले गए, तो मेरे पास कई प्रोफाइल आते हैं, वापस आते हैं, कई मेरे ऐसे जानकार हैं जो यू नो शिफ्टेड टू दी सीएफओ पोजीशन इन सम कंपनी, और फिर वहां जाके सर फंस जाते हैं कि साहब मैं कहाँ फंस गया, आप मुझे यहाँ से निकालो, कहीं और मुझे जॉब करवाओ। तो दीज थिंग्स आर देयर। तो ये भी एक, बिफोर वी एक्सेप्ट एनी पोजीशन, हमें ये सोचना पड़ेगा कि कितना सीरियसनेस है चीजों को लेकर के, है ना। आपको एक अपना कॉन्शियस डिसीजन लेना पड़ेगा इफ यू आर एक्सेप्टिंग एनी ऑफ दीज पोजीशन इन एनी कैपेसिटी, नॉट इन ऑडिटर कैपेसिटी ओनली, नॉट इन सीएफओ कैपेसिटी, इन एनी कैपेसिटी। तो ये जो क्लास का महत्व है वो यही है कि एटलीस्ट वी आर अवेयर ऑफ, हम अपने प्रॉस एंड कॉन्स सोच सकें जब भी हम आगे जाकर के और कोई इस तरीके का डिसीजन लें। क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा ना। हो सकता है किसी दिन आप अपनी ही कंपनी लिस्ट कराओ, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल कि आपने अपना एक स्टार्टअप कर दिया और आगे जाके और 5 साल बाद आप कहोगे नहीं सर इसकी हम लिस्टिंग कराएंगे। तो दीज आर द थिंग्स। तो apart from the knowing the provisions, we must also be aware of, we must be aware of that what are the consequences of all these things. तो ये सब चीजें हैं। क्या हो गया तेरा? सर 2 मिनट। जितने अपन इनको वो दे देते हैं, रिकॉर्डिंग बंद कर दो। हम्म, वो के वो गिफ्ट्स नहीं क्या आज पूरा
in